Namaste to all dear warriors and students. Here I am with a new video relating to income tax, income from salaries. And in this video we are going to discuss the provisions relating to perquisites. Okay, so perquisites, in the perquisites we are discussing a category, and this video will be I am making in both languages, Telugu as well as Hindi, so that it can be easily registered in your minds, and this question is repeatedly asked in the exams. So let us discuss one by one relating to points. So this is salary, our format, salary, allowances, then comes perquisites, profits in lieu of salary, gross salary, deductions, then chargeability section, then fully taxable allowances, and these fully taxable and fully exempted allowances we discussed in earlier videos, so please refer them. Special allowances, partly exempted allowance, and deductions. Here is one point relating to specified employee. Who is specified employee? If any one of the following conditions is satisfied, employee will be treated as specified employee. He should be employee plus director. उन्हों employee भी है और company में director भी है. Then he is employee and having substantial interest in the company, that is having voting power more than 20%. उन्हों एम्प्लॉय है और उसके साथ उनको वोटिंग पावर भी है कंपनी में, कितना 20% का. एंड ही इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी एक्सक्लूडिंग ओके सैलरी इन काइंड, लेस सैलरी इन काइंड एक्सीड्स 50,000, मीन्स परक्विजिट्स को छोड़ के बाकी सब सैलरी इनकम 50,000 से ज़्यादा है. Then he will be treated as specified employee. Anyone is satisfied, he will be specified. If none of the conditions of above are satisfied, then he will be treated as non-specified employee. तीन के तीन conditions में से कोई भी एक भी satisfy नहीं कर रहा, then he will be treated as non-specified employee. Next we are having perquisites taxable in the hands of all employees, that is specified employee and non-specified employee, दोनों को taxable होने वाले perquisites. उसमें पहले आता है अकोमोडेशन. अकोमोडेशन मीन्स एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग हाउस फैसिलिटी, रेंट पे नहीं कर रहे, रहने के लिए घर दे रहे आपको. ओके, इन दैट केस अकोमोडेशन इफ़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये हाउस प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर का खुद का हाउस प्रॉपर्टी है और एम्प्लॉय को दे रहे. देन पॉपुलेशन चेक करना उस सिटी में जहाँ पे इनको अकोमोडेशन दिए, वहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है. इफ़ up to 50 lakhs, then 7.5% of accommodation salary is taxable. If it is more than 10 lakhs and less than 25 lakhs, 10% of accommodation salary is taxable. If it is exceeds 25 lakhs, 15% of salary is taxable. I repeat, owned employer, own है, घर एम्प्लॉयर का खुद का है और एम्प्लॉय को दिए. देन पॉपुलेशन बेस्ड अप टू 10 lakhs, 10 लाख के अंदर पॉपुलेशन रहा वो सिटी में तो 7.5% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी. अगर 10 से 25 लाख के बीच में है तो 10% का अकोमोडेशन ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल. एंड इफ एक्सीड्स 25 lakhs, population exceeds 25 lakhs, 15% of accommodation salary is taxable. If it is hired by employer, ये घर रेंट पे लिए और रेंट कौन पे कर रहा, एम्प्लॉयर पे कर रहा, देन लीज रेंट पेड आर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल. ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. रेंट पे लिए तो. एंड अकोमोडेशन सैलरी मीन्स, प्लीज रिमेंबर दिस वन, अकोमोडेशन सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA एंटायर्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ब्रैकेट में रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए बोले तो ही लेना, कमीशन लेना है. ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, visa first head salary, second head allowances, total together we need to take without taking perquisites and profits in lieu of salary plus fees. Okay, all taxable allowances plus fees etc. but should not take employer contribution to recognized provident fund
एंड DA नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ओनली DA दिए तो नहीं लेना, ब्रैकेट में कुछ दिए तो लेना है. ओके, दिस इज अबाउट अकोमोडेशन सैलरी विच you are calculating 7.5%, 10% and 15%. Okay, hope you are understood. Next, if accommodation is provided in hotel, sometimes employee जब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं एट द टाइम, थोड़े दिन के लिए क्या करते, उनको टेम्पररीली होटल में रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करते. इफ़ it is provided in hotel, 24% of accommodation salary are higher charges, hotel bills whichever is less is taxable. बोले तो आप 20 दिन होटल में रहे, हर दिन के लिए 1000 रुपीज़ रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो होटल बिल कितने हो गए 20,000 रुपये. और आपका अकोमोडेशन सैलरी में बेसिक पे ये सब ऐड होके देखे तो आपका सैलरी 3 लाख रुपए है. कितना? 3 लाख रुपए. 3 लाख रुपए के ऊपर 15% कैलकुलेट करो, 45,000 हो रहा. सो 45,000 और 20,000 विच वन इज लेस? 20,000. दिस विल बी टैक्सेबल पर विजिट. दिस इज हाउ इफ इट इज हाइड वी नीड टू कंसिडर. सॉरी, होटल बिल्स, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 15% नहीं 24% चेक करना है. सो 3 लैक्स इंटू होटल में ना 24%, होटल मीन्स 24%. इससे पहले लीज रेंट के लिए मैंने बताया था. सो होटल बिल्स पेड इज़ 20,000 एंड होटल बिल्स पेड इज़ 20,000 एंड 24% ऑफ दिस इट विल बिकम 72,000. सो दोनों में से कौन सा कम है? 20,000. दिस विल बी टैक्सेबल पर विजिट, ऐसा लेना है. बट इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड अप टू 15 डेज, होटल में अकोमोडेशन दे रहे बट ओनली अप टू 15 डेज, नथिंग इज़ टैक्सेबल. कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे विथ फर्नीचर. If furniture is owned by employer, 10% of original cost of furniture we need to take. If hired by employer, then actual hire charges paid will be taken. अगर आपको फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहा तो 10%, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर रहा तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल पर विजिट. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हु इज़ पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? एम्प्लॉय खुद पे कर रहा, डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C. एम्प्लॉई पे कर रहा, डिडक्शन इज अलाउड अंडर 80C. एम्प्लॉयर पे कर रहा ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, फर्स्ट इट विल बी एडेड इन द हेड ऑफ सैलरी एंड डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C. इफ इट इज प्रोवाइडेड एज स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस जैसा सबके लिए मिला के एम्प्लॉई स्टॉक ग्रुप इंश्योरेंस ऐसा रहता है, तो वैसा सबके लिए है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई. देन ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉई मेड बाय एम्प्लॉयर, if it is fully for office purpose then it is not taxable. if it is personal purpose then amount reimbursed is fully taxable. बोले तो अभी आपको समझा देता हूँ. सपोज वर्क फ्रॉम होम चल रहा, क्या चल रहा? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. वर्क फ्रॉम होम चल रहा, घर पे वाईफाई कनेक्शन लगाए आपने, ओके, एंड यू आर पेइंग वाईफाई बिल से ₹3,000, ओके, 3,000 रुपीज़. ओके, ये 3,000 रुपीज़ एम्प्लॉयर आपको वापस दे रहा. ओके, वर्क फ्रॉम होम चल रहा, ऑफिस पर्पस पे वाईफाई यूज़ कर रहे, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा जो भी 3,000 रुपीज़ एम्प्लॉयर आपको दे रहे. बट इफ़ इट इज़ वाईफाई आपके घर पे चल रहा, देर इज़ नो वर्क फ्रॉम होम एंड एम्प्लॉयर इज़ रीइम्बर्सिंग दैट एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयर आपको वो पैसे वापस दे रहा, आप जो भी वाईफाई के लिए बिल पेमेंट करें, देन इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट. सर, कुछ लोगों को अभी भी दिमाग में एक डाउट रहता है, परक्विजिट बोले तो क्या? सर, ऑलरेडी परक्विजिट का डेफिनेशन इससे पहले ही दूसरे वीडियो में समझाए थे, फिर भी एक बार बता देता हूँ. एनी बेनिफिट, मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन काइंड इज कॉल्ड एज परक्विजिट. ओके, आपको कैश में नहीं काइंड में दे रहे तो वो
क्या हो जाएगा, परक्विजिट होता। नेक्स्ट है सेल ऑफ मूवेबल असेट। क्या है, सेल ऑफ मूवेबल असेट। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे से शॉर्ट क्वेश्चन में आल्सो कम आर दिस मे बी इंक्लूडेड इन द लॉन्ग क्वेश्चन एज ए वर्किंग नोट। सपोज मूवेबल असेट्स जो भी रहते वो एम्प्लॉय को सेल कर रहा, ओके, इन दैट केस, ओके, परचेज प्राइस माइनस लेस डिप्रिसिएशन फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 50%, मोटर कार 20% WDV मेथड, अदर असेट्स 10% SLM मेथड। ऐसा डिप्रिसिएशन निकाल देना, किस में से, परचेज प्राइस में से। देन कास्ट टू एम्प्लॉयर वी विल गेट, उसमें से सेल प्राइस ऑफ असेट टू एम्प्लॉय को वो असेट एम्प्लॉयर कितने में सेल कर रहा वो माइनस कर दो, बाकी जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ मूवेबल असेट परक्विजिट टैक्सेबल। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से समझा देंगे। सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह दे रहे, ओके, कंप्यूटर विथ प्रिंटर दे रहा, ओके, दोनों का वैल्यू कितना है बोले तो 1 लाख रुपए, ओके, कितने में खरीदे उन्होंने, 1 लाख रुपए में खरीदे। 1 लाख रुपए का जो कंप्यूटर एंड प्रिंटर है वो एम्प्लॉय को 2 साल यूज़ करने के बाद दे दे रहे। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वी नीड टू टेक डिप्रिसिएशन WDV मेथड। तो फर्स्ट ईयर इसके ऊपर 50% कितना होगा, 50,000। सो कितना बच गया 50 में से, ओके, 1 लाख में से 50,000 निकाल दिए तो 50,000 बच गया। एंड फ्रॉम दिस सेकंड ईयर डिप्रिसिएशन 50% 25,000। सो हाउ मच इट इज़ नाउ, कास्ट टू एम्प्लॉयर इज़ ये वाला कास्ट टू एम्प्लॉयर आ जाएगा 25,000। एंड दिस असेट बीन सोल्ड टू एम्प्लॉई, ओके, एम्प्लॉई को ये कंप्यूटर प्रिंटर दोनों मिला के 10,000 में सेल कर दे रहे। हाउ मच इट इज़ लेफ्ट ओवर, 15,000 इज़ लेफ्ट ओवर। दिस 15,000 इज़ टैक्सेबल परक्विजिट। ये कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड है। सर और एक एग्जांपल बता देता हूँ मोटर कार का। एम्प्लॉयर के पास एक नैनो कार है, कौन सा कार, स्मॉल कार, नैनो कार है, ओके, कितने का, 5 लाख का। 5 lakhs इज़ दी वर्थ ऑफ द कार वर्थ कितना है, 5 लाख का है। और एम्प्लॉयर ये 2 साल से यूज़ करने के बाद एम्प्लॉय को सेल कर दे रहे। कितने में सेल कर दे रहे, से 2,50,000 आधे में सेल कर दे रहे, ये सेल वैल्यू है एम्प्लॉय को। बट एम्प्लॉयर ने कितने में खरीदे, 5 लाख में। वी नीड टू टेक मोटर कार 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिप्रिसिएशन। सो 5 लाख के ऊपर 20% विल बी 1 लाख। सो डिडक्ट दी 1 लाख। हाउ मच इज़ लेफ्ट ओवर, कितना बच गया, 4 लाख, ओके, 4 लाख इज़ दी अमाउंट left over. So on this 4 lakhs again second year depreciation again 20% on 4 lakhs is 80,000. So 80,000 माइनस कर दो तो कितना बच गया, 3,20,000। दिस इज कास्ट टू एम्प्लॉयर। उसमें से सेल प्राइस कितना है, 2,50,000। डिडक्ट 2,50,000 फ्रॉम दिस। सो हाउ मच लेफ्ट ओवर, left over is 70,000. This 70,000 is taxable perquisite. Hope you are understanding. Okay, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट अदर असेट, दूसरे असेट्स, जैसा कि AC, समर है ना, AC है, AC इज़ 50,000 वर्थ। AC कास्ट कितना है, 50,000 का। एम्प्लॉय को कितने में दे रहा, AC 20,000 में दे दिए या 25,000 में दे दिए, ओके, से 50 ऑफ सेकंड हैंड है ना, 25,000 में दे दिए। एंड अदर असेट है 3 साल से यूज़ करें, 3 साल होने के बाद दे दे रहे। अदर असेट स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 50,000 के ऊपर, ओके, 10% will be 5,000. like that how many years, 3 years into 3 करो, it will become 15,000. so क्या करना, 50,000 में से डिप्रिसिएशन निकाल दो स्ट्रेट लाइन मेथड में 3 साल का।
it will be 35,000. This is the cost to employer. From this 25,000 you deduct. This 25,000 is sale value. Okay, how much is left over? 10,000. This 10,000 is taxable perquisite. Hope you have understood about sale of movable asset. वर्किंग नोट्स के साथ बता दिए एग्जाम्पल के साथ, राइट. नेक्स्ट, यूज ऑफ असेट्स. यूज ऑफ असेट. इफ असेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट इज टैक्सेबल. सपोज अभी इससे पहले बताए थे ना, कार दिए सेल करे, यहाँ पे कार सेल नहीं कर रहे, कार क्या कर रहे, एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दे दिए. 5 लाख का कार के ऊपर 10% ओरिजिनल कास्ट मीन्स कास्ट के ऊपर 10% 50,000 इज टैक्सेबल परक्विजिट. ऐसा कैलकुलेट कर लेना. इफ़ इट इज़ हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, ओके, एम्प्लॉयर के पास वो असेट नहीं है, क्या करे, एम्प्लॉयर हायर पे लेके एम्प्लॉय को दिए. एक्चुअल हायर चार्जेस पेड इज टैक्सेबल परक्विजिट. जितने उन्होंने एम्प्लॉयर ने पे करे, हाउ मच एम्प्लॉयर हैज़ पेड, दैट मच is taxable perquisite in the hands of employee. Next, if assets computer, laptop, telephone is given for use, then it is fully exempt. ये सब चीज़ें दिए तो कौन से कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन, ये 3 एग्जम्प्ट है. ओके. नेक्स्ट, अनदर वन, लोन फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, लोन फैसिलिटी. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को लोन दे रहे. ओके, देन इफ लोन अमाउंट इज एक्सीड्स मोर देन 20,000 देन इट इज़ टैक्सेबल. सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिए 1 लाख रुपए का. SBI का रेट है, SBI रेट वी नीड टू कंसिडर. SBI रेट है 10%. ओके, एम्प्लॉयर कितना चार्ज कर रहा, 6% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा. देन हाउ मच इज़ लेफ्ट ओवर, बेनिफिट एम्प्लॉय को कितना मिल रहा, 4% का. दिस 4% विल बी मल्टीप्लाइड विद द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर, प्लीज़ रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर 4% पे टैक्स होगा. ओके, मीन्स 1 लाख के ऊपर 4%, 4,000 रुपीज़. Hope you are understanding. Suppose if loan amount is less than 20,000, nothing is taxable. Loan is taken for medical treatment of specified diseases. थोड़े स्पेसिफाइड डिसीजेस होते हैं, लुकेमिया, ट्रोमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वैसे स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय ने लोन लिए. देन एम्प्लॉयर इज़ नॉट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट और चार्जिंग लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. whatever may be, that is not taxable, exempt है. okay, next we are having gift in kind up to 5,000 rupees exempt, above 5,000 rupees. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को स्मार्ट वॉच दिए, टाइम पे आने के लिए स्मार्ट वॉच दिए. ओके, स्मार्ट वॉच ₹3,000. ओके, गिफ्ट एज ए गिफ्ट दिए. देन दिस 3,000 इज लेस देन 5,000, नथिंग इज टैक्सेबल. सपोज ये स्मार्ट वॉच 13,000 का है, एंटायर 13,000 इज taxable. Don't deduct 5,000 rupees from this. Entire amount is taxable. If gift is given in cash, fully taxable. As bonus is taxable on receipt basis. वो बोनस जैसे ट्रीट करके माइनस कर देना. देन मील्स फैसिलिटी, ओन कैंटीन है या आउट स्टेशन कैंटीन है, वाट एवर में भी जो भी कास्ट एम्प्लॉयर को हो रहा, ओके, उसमें से 50 रुपीज़ पर मील पर डे इज़ एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग इज टैक्सेबल. सपोज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या कर रहा, एम्प्लॉय को मील्स प्रोवाइड कर रहे, ओके, फॉर 300 डेज एम्प्लॉय ने खाया है. और एम्प्लॉयर वो अपने कैंटीन में बना के दे रहे,
उनको खर्चा हुआ 100 रुपीज़, उसमें से 50 रुपीज़ इज़ एग्जाम, रिमेनिंग इज़ टैक्सेबल. सो 50 और 70 रुपीज़ यू कंसिडर, 70 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ इज़ एग्जाम, रिमेनिंग इज़ टैक्सेबल. सो 70 माइनस 50, 20, 20 इंटू हाउ मेनी डेज पर डे, 20 रुपीज़ इंटू 300, 6000 is taxable per visit. I repeat once again, if it is आउटसाइड कैंटीन, एम्प्लॉयर का खुद का कैंटीन नहीं है, बाहर का दूसरे कैंटीन से मंगा रहे और बाहर से ला रहे तो 120 हो रहा. 120 में से -50, ओके, देन इट विल बी 70 रुपीज़. 70 रुपीज़ कितने दिन खाए एम्प्लॉय ने? 300 डेज. अगेन 300 इंटू 7, 7 3 21,000. Okay, this is taxable perquisite in the hands of employee. Hope you are getting my point. Next, if it is any refreshments, tea, snacks, okay, during the office hours in the office premises, fully exempt है. Meals provided in remote area or offshore installation, fully exempt है. मतलब रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे लोग जाना ही मुश्किल है, वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, देन फुली एग्जम्प्ट है. नेक्स्ट पॉइंट, हॉलीडे होम फैसिलिटी आर टूर ट्रैवल अकोमोडेशन. सी, एम्प्लॉई का क्या है बोले तो एक फार्म हाउस है. ओके, क्या है? फार्म हाउस है. किसका? एम्प्लॉयर का. कहाँ पे? सोचो, मनाली में है. ओके, मनाली में एम्प्लॉयर का फार्म हाउस है. वो फार्म हाउस को सभी एम्प्लॉयज़ को क्या करे, लेके जाके वहाँ पे हॉलीडे होम ट्रिप, समर हॉलीडेज़ में वहाँ पे लेके जाके 2 दिन एम्प्लॉयज़ को क्या करे, वहाँ पे गेम्स वगैरह सब लगा के थोड़ा उनका स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए प्रोग्राम अरेंज करके यूनिफॉर्मली सबको लेके गए. तो इनको लेके जाके वहाँ पे रख के कितना खर्चा एम्प्लॉय को उठाना पड़ा, वो पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में. पर एम्प्लॉय कितना खर्चा करे एम्प्लॉयर उतना. ओके, नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली देन कास्ट टू एम्प्लॉयर. इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड टू कीमैन सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ ओनली, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को या जनरल मैनेजर को, ऐसे सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को ही वो प्रोवाइड करे. सिमिलर फार्म हाउस और गेस्ट हाउस और होटल के लिए कितना अमाउंट चार्ज करे दूसरे, दैट अमाउंट इज टैक्सेबल परक्विजिट. नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर ऑफिस पर्पस. सो एम्प्लॉयर ने क्या करे, एम्प्लॉय को बोले मनाली जाओ. ओके, मनाली जाओ और वहाँ पे क्लाइंट से मीट करो, डील फिक्स कर दो बोल के बोले. ओके, तो क्लाइंट मीटिंग अटेंड करने के लिए एम्प्लॉय कहाँ पे गए? मनाली गए. और क्लाइंट मीटिंग होने के बाद उसको फार्म हाउस में रेस्ट करने के लिए बोले. तो ये फार्म हाउस फैसिलिटी किस लिए दिए? ऑफिस पर्पस पे दिए. इफ़ इट इज़ फॉर ऑफिस पर्पस, इट इज़ फुल्ली एग्जाम, नथिंग इज टैक्सेबल. आई नो ईच एंड एवरी पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा. प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स. नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी. पर्सनल पर्पस. ओके, पर्सनल पर्पस अमाउंट पेड आर रीइंबर्स इज फुल्ली टैक्सेबल. ऑफिस पर्पस पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करे तो फुल्ली एग्जाम. क्लब फैसिलिटी, प्लीज़ रिमेंबर क्लब फैसिलिटी. ओके, पर्सनल पर्पस अमाउंट रीइंबर्स इज टैक्सेबल. ऑफिस पर्पस इज एग्जाम्ड. ओके, कॉरपोरेट मेंबरशिप और हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब वैसे है तो फुल्ली एग्जाम्ड है. ओके, ये सब एग्जाम्ड हो जाएंगे. पर्सनल पर्पस क्लब है तो टैक्सेबल, पब नहीं क्लब. ओके, पब कैसे भी टैक्स होता. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP. ओके, एम्प्लॉय को ऑफर दे रहे एम्प्लॉयर इज गिविंग एम्प्लॉई टू परचेज स्टॉक और शेयर्स एट लोअर रेट. मार्केट में उसका प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू 150 रुपीज़ है. वही एम्प्लॉय को
ये शेयर्स एम्प्लॉयर 100 रुपीज़ में दे रहे हैं. सो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस कितना है 100 रुपीज़. सो 150 माइनस 100 50 रुपीज़. वैसे 50 रुपीज़ ओके into how many shares employee has purchased. Suppose say 1000 shares he has purchased. 1000 into 50 50,000. So 50,000 is taxable perquisite in the hands of employee. बस यही पे ख़त्म होता अपने पूरे ए कैटेगरी के परक्विजिट्स. सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग. सीखते रहो क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन. शेयर करो सभी दोस्तों से. जय हिंद.